Hello everybody, whatever I teach you in previous classes, you have done revision of all the classes or not? Hello, nobody is listening? Yes, sir. In previous classes what we have teach you, you have revised the topics or not? You have done self study on that topic or not? Hello, I think nobody has time to see the pages, see the copy, see the notebook. Am I right? कंपोनेंट ऑफ एडीएसएस हो गया था सर। हाँ, उसको बाद में पढ़ा देंगे। अब न्यू टॉपिक इज द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या टॉपिक है? System development life cycle. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? एनीबडी कैन गिव आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? टेल मी। हेलो, Yes, sir. nobody has answer of system development life cycle means there are two types of systems. बात ध्यान से सुनना। there are two types of system, existing system and candidate system. क्या होता है existing system और candidate system? existing system means what? Running system. What system is running right now? What system we are working right now? What system is existing right now? That is called existing system और current system. दोनों चीज बोल सकते हैं, existing system भी और current system. ठीक है। अब है एक होता है कैंडिडेट सिस्टम या प्रोपोज्ड सिस्टम। कोई बताएगा? मैंने इसको बताया है प्रीवियस क्लासों में। व्हाट डू मीन बाय कैंडिडेट सिस्टम और प्रोपोज्ड सिस्टम? टेल मी। सर जो सिस्टम बनेगा ना सर उसको कहते हैं कैंडिडेट सिस्टम सर। हाँ, तो वाट एवर द सिस्टम वी आर गोइंग टू क्रिएट नाउ, वाट एवर वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू सिस्टम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड प्रोपोज्ड सिस्टम और कैंडिडेट सिस्टम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। इससे पहले किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी आप लोग की? इंग्लिश का। इंग्लिश की। और क्लास कब तक चलेगी आपकी आज? अभी 3 तक। अप टू 3 o'clock। लंच होता नहीं है बीच में? नहीं सर। हैं? नहीं सर। 12th में कुछ नहीं था। नो सर, कंटिन्यूअस वाह, बहुत मेहनती बच्चे हो तुम लोग। हाँ, हो रहा है सर। कम टाइम। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? तो जब हम सिस्टम डेवलप करते हैं तो सिस्टम कवर्स मेनी फेजेस टू डेवलप न्यू सिस्टम। सिस्टम कवर्स मेनी फेजेस टू डेवलप न्यू सिस्टम। सर जितने भी सर प्रोसेस जो अप्लाई होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। लिख लो, 2 लाइन लिखना है, बाद में मैं शेयर कर दूंगा नोट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। सुन रहे हो? यस सर। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड का मतलब हुआ what system we are going to develop. First we do preliminary survey, initial investigation. Whatever we will do, preliminary survey and initial investigation. Preliminary survey means, anybody tell me what do you mean by preliminary survey? Means primary survey means before developing, हाँ, before developing any system,
we have to do preliminary service. Okay, just an example I am asking to all of you. If I am going to develop a system for airlines reservation system, just a minute. So what are the preliminary survey for developing airlines reservation system as regarding as a software term? Tell me. कोई बताएगा? If I am going to develop airlines reservation system, then what are the preliminary requirement? What the preliminary knowledge to develop the airlines reservation system? एक वेब एप्लीकेशन बनाना है हम लोग को एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, तो हम लोग को प्रीलिमिनरी क्या क्या जरूरत पड़ेगी, बोलो. हेलो. To have knowledge about different airlines and about their different aircrafts, their timings, their fares. The source to destination, what are the fares, what are the timings, how we can do passenger ticket booking, everything we have to see. See or not? Yes, sir. Okay. Yeah. If we are going to develop a student information system with reference to the college, what we have to develop? What are the basic preliminary data for developing a student reservation system? Tell me. What are the preliminary data for a student information system? आप लोग कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहते हो क्या? हेलो. मैं रोल नंबर से पूछूंगा तभी बोलोगे. रोल नंबर 1 बुलेट कुमार. Yes, sir. If I am going to develop a student information system as a system, तो हम लोग को प्रीलिमिनरी सर्वे की जरूरत क्या क्या पड़ेगी? व्हाट एवर द डेटा वी नीड फॉर प्री सर्वे, टेल मी. सर स्टूडेंट के लिए. हाँ. सर एक स्पेसिफिक एज. अरे उसके लिए उसके नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम कहाँ चले गए? एक ही बार एकदम उड़ के आगे चले गए. नेम एज ये सब से एक क्या क्या फील्ड की जरूरत पड़ेगी? नेम है, एज है, ब्लड ग्रुप है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सोर्स, लोकेशन, स्टेट, कंट्री, सब कुछ हो सकता है ना? यस सर. आप जैसे कॉलेज में लाइब्रेरी में आते हो तो आप बुक परचेज कैसे कराते हो? ऑनलाइन कराते हो कि ऑफलाइन कराते हो? उस इमेज में अभी तो ऑफलाइन हो रहा था. ऑनलाइन इसके कैसे होगा? ऑनलाइन अगर होगा तो लाइब्रेरी सिस्टम में क्या होगा, आपका यूनिक आईडी या आपका रोल नंबर डाला जाएगा और उसी के डालने के बाद आपका डेटा इंफॉर्मेशन फेच आउट करके आ जाएगा कि आपके पास कितनी बुक्स है, कितनी बुक्स नहीं है. ये सर कब ले गए थे, नहीं ले गए थे, तो सब कुछ एवरीथिंग शुड बी ऑन योर डेस्कटॉप. एवरीथिंग शुड बी ऑन योर डेस्कटॉप. आप जैसे एक सिस्टम हम लोग मंथली स्टेटमेंट निकालते हैं, बैंकिंग का निकालते हैं. यस सर. एटीएम से भी निकालते हैं और बैंक से भी निकाल सकते हैं. यस सर. मंथली स्टेटमेंट क्या है? एक सिस्टम ही तो है कि आपने किस दिन कितना क्रेडिट किया, किस दिन कितना डेबिट किया है, और तो कुछ नहीं है. नो सर. और कुछ है? नो सर. नो सर. डेट वाइज ये डेट वाइज. तो वो क्या है? सिस्टम है. दैट इज ए सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ कि दैट आर द सिस्टम. जैसे एक कार कंपनी है, देयर इज ए कार कंपनी टोयोटा, मारुति. दैट कंपनी वांट्स टू क्रिएट ए न्यू कार. तो क्या करेगी? प्रीलिमिनरी सर्वे क्या क्या करेगी बताओ? व्हाट सर? एक कंपनी है टोयोटा या मारुति, उसको एक कार बनाना है, न्यू कार ही हैज टू डेवलप. व्हाट ही विल डू प्रीलिमिनरी सर्वे फॉर दैट कार, टेल मी. डिजाइन. तो मार्केट रिक्वायरमेंट देखेगी, मार्केट में लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है,
कैसा और लोग market पसंद करते हैं। वेरी requirement, गुड, वेरी नाइस पॉइंट, मार्केट रिक्वायरमेंट। सेकंड, क्या एग्जिस्टिंग कार्स जो है उनको भी तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या चीज है जो हम नई कार में हम डाल सकते हैं, नए फीचर्स को डाल सकते हैं। पुराने से नए अच्छे फीचर्स को लेना और नए में नए फीचर्स को ऐड कर देना, तब तो आपकी जो न्यू कार होगी दैट इज गुड और बेटर yes होगी। sir, होगी कि नहीं है? yes sir, ओके, अब मैं बात करता हूँ, जैसे कंपनीज आर टेकिंग डिसीजन फ्रॉम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हाउ मीन्स मैनेजरियल लेवल और डायरेक्टर लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल, which type of MIS software we have to develop that that system will become very efficient, very effective? How? Tell me. क्या बनाएंगे हम जो काफी इफेक्टिव होगा, सॉफ्टवेयर काफी पावरफुल होगा, जो डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगा, बताओ। हाँ, हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, माय वॉइस इज नॉट कमिंग। रोल नंबर 5, आदित्य राज, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? हेलो, So it is perfectly fine, sir. Yes, sir. You are audible. You are audible, sir. तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? क्यों सुनते रहते हो? जवाब दोगे तो इंटरेक्शन से ज्यादा नॉलेज बढ़ता है। गलत जवाब ही दोगे, मैं उसको सुधारूंगा कि यही तो होगा, तो कुछ होगा नहीं। Yes, sir. तो बताओ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर मान लो एक कंपनी है, सिमेज ग्रुप है, तुम लोग सिमेज पे आ जाओ, तो सिमेज ग्रुप का MIS सिस्टम कैसा होगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर सर या डायरेक्टर मैम सही डिसीजन ले सकेंगे कॉलेज के लिए? क्या उसमें क्या क्या चीज उसमें इनपुट होगा, ये बताओ। नहीं मालूम? हेलो, Yes, sir. नहीं मालूम है किसी को? नो सर। No, sir. क्या है मैं बता, MIS कंट्रोल्स दी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ दी मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये मैंने बताया है आप लोगों को शायद। MIS कंट्रोल्स दी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्रोलिंग, प्लानिंग, मैनेजिंग, डायरेक्टिव्स, सब मैंने बताया है कि नहीं आप लोग को? तो हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिसमें वी कैन सी एवरीथिंग्स, वी कैन सी हाउ टू कंट्रोल द पीपल, हाउ टू मैनेज द पीपल, how to give direction to the people. So we have to do everything as per the software requirement. तो क्या होगा, जब सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे अपने कॉलेज के लिए तो उसमें HR सेक्शन डालेंगे कि नहीं, मार्केटिंग डालेंगे कि नहीं, Yes, sir. स्टूडेंट सेक्शन डालेंगे कि नहीं, स्टूडेंट कैन डू ऑल्सो कंप्लेन रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग स्टेशनरी, रिगार्डिंग एजुकेशन एंड रिगार्डिंग मेनी मोर थिंग्स। कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो फिर क्या हुआ, MIS को हम कैसे बनाएंगे? तो हम एक ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हों, जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हों। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग को? हाँ, फिजिबिलिटी लिख लो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड में लिखो। इसमें क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड में होगा, पहला पॉइंट क्या होगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड में, व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, लिख रहे हो? Yes, sir. What is the problem and what are the objective?
व्हाट आर द प्रॉब्लम और व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। देखो, if we are going to develop any new system, then there both things comes, problem also come and opportunity also comes. Means any new invention, any new system invention brings both the things, opportunity and problem, opportunity and problem. बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग को? Pardon, please, sir. Any new system, any new candidate system invention, whenever we are going to invent a new system, a new candidate system, a new proposed system, then there two things come. One is problem and second is Opportunity. opportunity. Means just like corona comes into the world, it brings both the things. It brings problem, so that throughout the world is suffering from this big problem. And opportunity is this, like after this corona pandemic end, after 6 months, 8 months, 1 year, whatever, then a new recreation of the things begins in this world. You are agree with me or not? A new education methodology, a new family methodology, a new relationship will be generated. Everything will be generated as a new way. Means anything, if we are going to develop new, then both things comes, problem will come and opportunity will come both. Okay. Second is feasibility study. First मैंने क्या बोला? Recognition of need. Means तुम लोग कुछ बताओगे? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड मतलब जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. तो उसमें प्राइमरी स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? जैसे तुम बताओ, सुन लेना, हम एक, मेरी बात सुनना, आई एम गोइंग टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन just like informative web application, then what are the things we needed? Tell me. क्या चीज का जरूरत पड़ेगा हम लोग को? Terms and conditions. नहीं, मुझे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख, तुम लोग मोबाइल खरीदने जाते हो कितना देखते हो कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कितना है, सॉफ्टवेयर इसमें क्या क्या एक्सेप्ट होगा, विंडोज होगा कि दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा कि कौन सा चलेगा, गूगल चलेगा नहीं, सब कुछ चेक करते हो तुम लोग, एक एक चीज फीचर चेक करते हैं सारे बच्चे, जितने तेज हैं आज के बच्चे हैं। Yes, sir. तो जब हम रिकॉग्निशन और जब हम वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो चेक नहीं होता है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, लैंग्वेज हम कौन सा यूज करेंगे, जावा करेंगे, पाइथन करेंगे, डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, ओरेकल करेंगे, माई एसक्यूएल करेंगे, प्रो एसक्यूएल करेंगे, साइबेस करेंगे, इनग्रेस करेंगे, सब नाम सुन रखा है कि नहीं कभी तुम लोगों ने? हेलो, Yes, sir. सुनने। साइबेस, इनग्रेस सबका नाम सुन लिया है? नहीं सर, ये No, sir. No, sir. तो दही में सही कैसे कर दिए तुरंत? हाँ सर, हाँ सर। सर गाना सुने थे पाइथन वगैरह जावा ये सब सुना है। ये सब सुना हुआ है सर, ये सब तो डेटाबेस जान लिया होता है। है साइबेस, इनग्रेस, ये सब बहुत पावरफुल डेटाबेस है, सुन लो नाम हैं। ओके सर। तो ये चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, समझ गए कि प्रीलिमिनरी स्टेज पे क्या करेंगे, कैसा सॉफ्टवेयर, कैसा हार्डवेयर, या पुराना अगर एप्लीकेशन बना हुआ है तो उसमें डिमेरिट क्या है, हो सकता है डिमेरिट कि वो विंडोज 32 ऑपरेटिंग सिस्टम पे बढ़िया चल रहा है लेकिन विंडोज 64 पे वो चल नहीं पा रहा है, वो एसक्यूएल सपोर्ट कर रहा है, एसक्यूएल सर्वर, लेकिन ओरेकल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो नॉर्मल वे में नहीं खुल पा रहा है, वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, तब जाके न्यू सिस्टम को बनाया जाता है। इस बात से तुम लोग एग्री हो या नहीं? Yes, sir. यस सर, एग्री। तो ये होता है प्राइमरी चीज। और मैंने बताया व्हाट इज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। पुराने प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा, जब पुराना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, मिलेगा कि नहीं?
यस सर। Yes, sir. जैसे कोरोना के चलते दुनिया ठप हो गई, तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मेडिकेशन, ऑनलाइन एवरीथिंग अवेलेबल होने लगा कि नहीं है? यस यस हाँ। सर। अब फिजिबिलिटी स्टडी में होता है, फिजिबिलिटी स्टडी में पहला तो हम रिक्वायरमेंट कर लिए, पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, मतलब उसमें रिक्वायरमेंट हमने गैदर किया। पहला पॉइंट में हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदर किया, इंफॉर्मेशन गैदर किया कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होगा, जो हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैंडिडेट सिस्टम के द्वारा हम कैसे उस प्रॉब्लम को रिमूव करें, कैसे प्रपोज सिस्टम मोस्ट पावरफुल मोस्ट स्ट्रांग बनने का काम हो। अब हुआ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में होता क्या, सुन लो, इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव कैंडिडेट सिस्टम, कॉस्ट एस्टिमेट। इसमें क्या करते, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, उसका हम इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन मतलब, इवोल्यूशन का मतलब बताओ तुम लोग। तुम लोग क्लास में अधिकतर बच्चे आ जाते हैं कि बैठना है, बस टाइम पास करके निकल जाना है, कुछ पूछो तो बोलना ही नहीं है। अच्छा, कल से तो मुलाकात होगी, एक सप्ताह 4 दिन 2 दिन बाद सबसे, हैं, होगी ना? यस सर। यस सर। तब क्लास में कैसे बचोगे ये बताओ, पूछूंगा कुछ तब। यहाँ तो मान लो कैमरा ऑफ कर दिए, चाहे दूसरा बहाना बना दिए, वहां कैसे बचोगे? वहां क्या टैक्टिस लगाओगे बताओ? हाँ, तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। जो पुराना सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रोपोज सिस्टम होगा, कैंडिडेट सिस्टम होगा, फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि हाँ इसमें क्या डाउट प्रॉब्लम्स है, शॉर्ट कमिंग्स है, डिमेरिट्स है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। जो बनाएंगे उसका, उस जो पुराने में डिमेरिट्स है, शॉर्ट कमिंग्स है, हाउ वी विल रिमूव इन द कैंडिडेट सिस्टम। अब है कॉस्ट एस्टीमेट। कॉस्ट एस्टीमेट मतलब फिजिबिलिटी स्टडी में 3 प्रकार का कॉस्ट एस्टीमेट होता है। लिख लो, 2 पॉइंट हम लिखवा देते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी लिख रहे हो ना, लिखो। इन फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी का स्पेलिंग मालूम है कि नहीं? यस सर। क्या है बताओ? FIGIVILITY। बिल्कुल गलत, बहुत बड़ा गलत। PH से होगा सर। PH से होगा सर। एफ ई ए, ये सुन लो, FEASIBILITY, सुन लिए? सर रिपीट कीजिए। फिर से रिपीट कर दें, FEASIBILITY। हो गया? Okay, sir. हो गया। लिखो, इन फिजिबिलिटी स्टडी in feasibility study we do in feasibility study we do evaluation of existing system. We do evaluation, EVALUATION. We do evaluation of existing system and procedures
and analysis of alternative candidate system. ठीक है, यस सर। और इसमें करते हैं इन द लिखो इन द फिजिबिलिटी स्टडी, in the feasibility study यस सर। we are doing we are doing in feasibility study we are doing cost estimation, we are doing cost estimation. ठीक है, यस सर। देखो कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट एस्टिमेशन? रोल नंबर 04 बिक्कीराज, टेल मी. लिखो, cost estimation are of three types in feasibility study. Cost estimation are of three types in feasibility study. Repeat, sir. Cost estimation are of three types in feasibility study. सर समझ- कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब बता दीजिए। बता रहे हैं, पहले लिख लिए, ये बोलो तब हम आगे बताएंगे. यस सर, लिख लिया। यस सर। थ्री टाइप्स के बाद पहले लिखो, पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने दो. फर्स्ट लिखो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी, इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी स्टडी. इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी स्टडी. लिख लिए? डन सर। यस सर। दूसरा लिखो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी. टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी. थर्ड वन बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी. बिहेवियर का स्पेलिंग जानते हो कि उसमें एयर लगा देना. बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी. ठीक है, यस सर। अब हम लोग आए फर्स्ट इकोनॉमिकल. फर्स्ट इकोनॉमिकल है ना कि क्या है? सर उससे पहले सर इकोनॉमिकली कॉस्ट एस्टिमेशन का बात। उसी पे आ रहा. कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब ये हुआ, वाट एवर वी आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू सिस्टम और proposed system or candidate system comes under predefined cost or not. मान लीजिए एक वेब एप्लीकेशन बनाने का मैंने 10 लाख रुपया कंपनी ने चार्ज किया. कितना चार्ज किया? 10 लाख। 10 लाख। एक कंपनी ने कहा कि आई विल क्रिएट योर वेबसाइट विद इन 10 लाख रुपीज और आई विल चार्ज ऑफ अप टू 10 लाख रुपीज. काम शुरू हुआ, उसमें 10-15 प्रोग्रामर ने डेवलप करना शुरू किया.
और वो काम होते होते वेबसाइट बनते बनते उसका खर्च बैठ गया 15 लाख रुपया, तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हुआ या लॉस हो गया? हेलो, यस सर। दिस इज कंपनी बेनिफिट। के लिए बोलो बोलो। कंपनी के लिए बेनिफिट हुआ और डेवलपर के लिए नहीं। नहीं, मेरी बात नहीं समझे यार। कंपनी ने कोड किया कि मैं इस वेबसाइट को बना दूंगा, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर दूंगा, 10 लाख रुपीज लगेगी, पार्टी को उन्होंने बोला, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद वो वेब एप्लीकेशन बनने में 15 लाख रुपीज खर्च हो गए। कितने हो गए? 15 लाख रुपीज। तो कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये मैं पूछ रहा हूँ। लॉस हुआ। लॉस। लॉस तो क्योंकि उसने काम को 10 लाख रुपीज में बोला था कि आई विल डू इट, बट नाउ इट यस कॉस्ट इज 15 लाख रुपीज, कंपनी गेट लॉस ऑफ 5 लाख रुपीज। सो दिस इज इकोनॉमिकली लॉस कर गया। फिजिबिलिटी स्टडी में आपने सोचा था कि मैं 10 डेवलपर लगाऊंगा, काम इतने दिनों में हो जाएगा, इतने पैसे में हो जाएगा, बट ये हो नहीं सका, बट ये हो नहीं सका। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। कि आप स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिकली तो कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है। दूसरा पॉइंट क्या है? टेक्निकली। टेक्निकली का मतलब ये हुआ, जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाए, टेक्निकली बनाए, और आप सिस्टम चला रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, मान लीजिए कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपका, कोई सा भी, और उसको चला रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस काफी पुअर है, आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को चल ही नहीं रहा है, स्लो है, बीच बीच में हैंग कर जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस टेक्निकली पुअर है या गुड है? पुअर है सर। पुअर है सर। पुअर है। तो ये आ गया टेक्निकल के अंदर, ये आ गया किसके अंदर? टेक्निकल। और नहीं, ये सॉरी, ये आ गया बिहेवियरल के अंदर। टेक्निकल का क्या मतलब हुआ कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया और मान लीजिए उस एप्लीकेशन को चलने के लिए 8 GB स्पेस की जरूरत पड़ती है। वो ओरेकल को सपोर्ट करता है बट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को नहीं करता, माई एसक्यूएल को नहीं करता, प्रो एसक्यूएल को नहीं करता, तो सॉफ्टवेयर कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है। सॉफ्टवेयर क्या नहीं हो पा रहा है? कंफर्टेबल नहीं हो रहा। कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब टेक्निकली आपने ऐसा बना दिया वो एडजस्टेबल, अकॉम्पनेड और एक्वायर्ड नहीं हो पा रहा है ज्यादा लोगों से। जैसे आज व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, सब लोग करते हैं। यस सर। व्हाट्सएप को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि जब हम खोलते हैं यूजर आईडी डालो, पासवर्ड डालो, या किसी का मैसेज आया तो पासवर्ड डाल के देख रहे हैं, मतलब मिनिमल लेवल पे, मतलब लोग डालते हैं, लेकिन ये एकदम कंडीशन बना दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि इसके बिना काम नहीं होगा, आप जब खोलो तब ये करो, ये करो, ये चीज चेक करो, ये टिक करो। तो कितना दिक्कत होती। बहुत सर। तो आप सॉफ्टवेयर को टेक्निकली ऐसा बना रहे हैं कि दैट इज फिजिबल फॉर द प्रोग्रामर, डेवलपर एंड द एंड यूजर। जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते, जीमेल यूज करते, एंड यूजर के लिए उसमें सहूलियत है कि नहीं है? यस सर। यस कंपनी कर दे कि जब भी आप जीमेल खोलो यू कैन डू इट, कि ओटीपी आप सेट कर सकते हो, लेकिन कंपनी ऐसा कर दे कि जब भी आप फेसबुक खोलो ओटीपी आप लगाओ, किसी को मैसेज करो तो कंपनी से परमिशन लो, किसी का मैसेज पढ़ो तो कंपनी से परमिशन लो। तो सॉफ्टवेयर फिजिबल होता कि नहीं होता, ये बताओ। नो सर। नहीं होता, टाइम वेस्टिंग ही वेस्टिंग चलते रहता हर समय, दिन भर है। तो सॉफ्टवेयर इसको बोले टेक्निकल फिजिबल। अब हम आए बिहेवियरल पे। बिहेवियरल का मतलब हुआ कि जो उसका परफॉर्मेंस, उसका व्यवहारिक परफॉर्मेंस है, दैट इज राइट और रॉन्ग। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि आपने उसे अपने सिस्टम में कोई कोई गेम होता है कि आप अपने मोबाइल में चाहे सिस्टम पे लोड करते हैं, बट इट इज नॉट वर्किंग इन एफिशिएंट मैनर। आप लोग देखें एक नहीं चीज। हेलो, यस सर। यस देखें। सर। यस सर।
या ठीक है, मान लीजिए क्लाइंट के सर्वर के सिस्टम पे वो अच्छा काम कर रहा है, बट क्लाइंट के सिस्टम पे वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, या वो सॉफ्टवेयर एक सिस्टम पे अच्छा चल रहा है, मान लो 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर अच्छा चल रहा है, लेकिन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे विंडोज पे वो अच्छा काम कर रहा है, यूनिक्स पे अच्छा काम नहीं कर रहा, लाइनेक्स पे नहीं कर रहा, रेड हैट पे नहीं कर रहा, द पे नहीं कर रहा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं कर रहा। नाम सुना THE द भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना अभी तक? नो सर। नो सर। यस सर कौन बोल देता है फटाफट एकदम, मतलब तुरंत? नो सर बोले सब। ओके, तो द भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ है, वो यूनिक्स पे चल रहा है, बस विंडोज पे चलने में वो परेशानी किए हुए है, तो ये हुआ बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी, बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी। बात समझ में आ गई आप लोग को? और फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, कोई बताएगा? रोल नंबर 4, व्हाट वी आर डूइंग इन फिजिबिलिटी स्टडी? सर एग्जिस्टिंग सिस्टम को सर इवोल्यूशन कहते हैं, उसको एनालाइज करते हैं उसके। और न्यू सिस्टम को भी करते हैं कि उसमें क्या आउटकम्स क्या रह गया था प्रीवियस सिस्टम में, व्हाट आर द आउटकम्स, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब पता आप लोग को? बोलो हाँ या नहीं, बोलो जल्दी भाई। नो सर। मतलब 4 बार बोले एनर्जी मैं निकाल दूं पूरा, तब बोलोगे यस सर या नो सर हैं? सर परेशानी। हाँ, कमियां कमियां। व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम्स वी क्रिएट द न्यू अपॉर्चुनिटी। उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। जब हम एनालिसिस करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को, क्या कमी है नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, न्यू सिस्टम के लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करेंगे, ठीक है। कॉस्ट यस सर। एस्टिमेशन आप लोग को पता चल ही गया होगा क्या है, चल गया है कि नहीं? यस सर। बताओ कॉस्ट एस्टिमेशन मैं जिससे पूछूंगा, रोल नंबर 10, कॉस्ट एस्टिमेशन कितने प्रकार से होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन? How many types of cost estimation design? How many types of feasibility study in? How many types of cost estimate in feasibility study? जल्दी कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? रोल नंबर 6 उत्तम कुमार, 3 टाइप्स सर। जल्दी जल्दी बोलो। इकोनॉमिकली, टेक्निकल और बिहेवियर। इकोनॉमिकली, टेक्निक और बिहेवियरली, ठीक है। अब हम लोग अटेंडेंस लेने की तैयारी करें। यस सर। यस सर। आज के टॉपिक में किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दे कैन रेज हैंड और दे कैन आस्क मी। हेलो, यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, टेल मी। फिजिबिलिटी वाला सेकंड टाइप बताइए ना क्या था? एक बोले इकोनॉमिकल, दूसरा टेक्निकल, तीसरा बिहेवियरल, बताए ना? यस सर, टेक्निकल वाला छूट गया था। टेक्निकल बताए थे लेकिन कोई बात नहीं। टेक्निकल में है क्या, आप एक सॉफ्टवेयर बना लेते हो, ठीक है, आप एक वेब एप्लीकेशन बना लेते हो, सिंपल सी बात, आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हो। वो मोजिला फायरफॉक्स पे तो अच्छा चल रहा है लेकिन ओपेरा पे नहीं चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चल रहा है, तो कैसा रहेगा वो सॉफ्टवेयर, ये बताओ कैसा रहेगा वो वेब एप्लीकेशन? जो एक पे तो बहुत अच्छा चल रहा है मोजिला फायरफॉक्स पे, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें वेब ब्राउजर पे दैट इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, क्या होगा फिर? टेक्निकल हैं? उसमें गुड और इम्प्रूव बैड, करना होगा कुछ। क्या कहें? यूजर फ्रेंडली नहीं होगा सर। तो उसको बनाने का मतलब क्या हुआ, फिर तो कंपनी को लॉस हो जाएगी ना उस एप्लीकेशन बनाने से। जब ज्यादा Yes, sir. यूजर उसको इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या रह जाएगा, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम तो बोलो। नो सर। नो सर, हो गया। सर ऑनलाइन पहले का अटेंडेंस, नोट्स नहीं मिला है सर।
आप तो कल परसों से सब नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अरे भाई कल से सर तो ऑनलाइन जूम पर तो क्लास नहीं ना चलेगा। तो आप लोग को रात में शाम तक पता चल जाएगा, जो इसके काम देखते हैं वही बता पाएंगे। आई कैन नॉट टेक इट क्लियरली है। चलेगा, पोदार सर बोले थे ना चलेगा। ऑनलाइन भी चलेगा। यस सर, पोदार सर बोले थे। ओके, नो इशू। टुडे 6 ना। यस सर। यस सर। बच्चे सोच में पड़ जाते कहीं गलत ना निकल जाए, आज 6 है कि 7 ये भी नहीं मालूम है। बड़ी स्थिति। अभी एक बच्चा रहा सचिन कुमार, क्या किया जाए इसका? अलाउ करके पूछिए कहाँ था सर। हैं? नेटवर्क इश्यू होगा शायद सर। नेटवर्क इशू भी एक बहाना बन गया सब बच्चों को। सर सच में रहता है नेटवर्क इशू। ठीक है, कोई इशू नहीं है। रोल नंबर 1, यस सर 1। रोल नंबर 2, स्क्रीन शेयर कर दो ना। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। प्रेजेंट सर 4। और जिसका छूट जाएगा मैं लास्ट में कर लूंगा, घबराना नहीं है। 4 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 5, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6, 6 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 7, 7 present, sir. रोल नंबर 8, प्रेजेंट सर रोल नंबर 8। रोल नंबर 9, Present, sir. रोल नंबर 10, 10 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11, यस सर 11। रोल नंबर 12, रोल नंबर 12। सर जिसका बन जाए वो लीव कर जाए क्या? नहीं नहीं रोहन, 5 मिनट में कहाँ जाओगे? ओके सर। रोल नंबर 13, रोल नंबर 14, रोल नंबर 15, प्रेजेंट सर 15। 16, यस सर 16। 17, प्रेजेंट सर। 18, यस सर 18। 19, प्रेजेंट सर। 20, यस सर 20। 21, 22, सर। 22, यस सर। 23, 24, 25, यस सर 25। 26, 27, 28, 29, 30, 31, प्रेजेंट सर। 31 प्रेजेंट, यस सर। 32। हेलो हाँ हेलो बोलो। सर 24 बन गया। कहाँ रहते हो भाई? सर बोले थे माइक से आवाज नहीं गया। कोई बात नहीं, बन गया अब बन गया, ठीक है। मोहम्मद रियान। यस सर। 31, 32, 33, 34। प्रेजेंट सर 34। हेलो सर 27 प्रेजेंट। कोई बात नहीं, 30 सर 27 लगा दिया। 34, 35, प्रेजेंट सर 35, 36, 37, 38, प्रेजेंट सर 38। 39, प्रेजेंट सर 39। 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, सर 41। सर 42 सर। 41 भी। 43, 44, 45, प्रेजेंट 45। 44. 46, 47, 48, यस सर। प्रेजेंट सर 48 है। 46 प्रेजेंट, 47 सर। यस सर। 48, प्रेजेंट सर 48। 49 और 50, 49 प्रेजेंट सर। 50, 51, 51, 52, 53,
54 50 बना दो क्या सर 50 54 55 56 57 Sir, 55 present. Sir, 56 present. 55%, 56%, 57, 58, 59, Sir, 58 present. 59, 60, Yes, sir. 60. 61 हो गया. कितना 58. कितनी बार करवाना है भाई? 58 हो चुका. रोल नंबर 62. 62, यस सर, प्रेजेंट सर. 63, 64, 65, 64, 62 सर, रोल नंबर 62. 64. 62 कितनी बार करें यार? 64. 65 63 सर. कर दिए भाई. तुम लोग चुप रहते हो, मजे लेते रहते हो, यहाँ आदमी टीचर चिल्लाते रहे. सर 64 हुआ. 64 हो गया, 65 हो गया, 66, 67, प्रेजेंट सर 67 68, 69, Present sir, 69. 70 Sir, 69. हो गया, 70, 71, 72, यस सर 72 72, 71, 71. यस सर 72 ठीक है, 73, 74, 75, 74 present, sir. 75%, sir. 76, 75. 76, 77, 78, 78 sir. Present. 78 चंदन, Yes sir. 79, 80 सर 79 सृजन, यस सर 81, 82, 83, 84, 82 sir, present. 82. 83, 84, 85, 85 सर 86, 87, Present sir 87. 88, 89, 90, 89 सर 91, 92, 93, 94, 95, 96, सर 96 97, 98, 99, 100. 100, sir. हैं? 100. 101, 102 सर 98 सर 98. कर दिया भाई. एक ही बात को 20 बार बोलने की क्या आदत है तुम लोग को? Number 14. समय पे Roll number 14. समय पे बोलते नहीं हो. और 101, 102, 103, 104, Yes sir, 104. 105, 106, Yes sir, 106. 107, प्रेजेंट सर 107 108, 119, 109, 1110, 111, Sir 81 sir. 110 sir. Sir 81. 110 sir. Sir 81. 111, 111. Sir 81. Sir 81. बाद में अभी आए और माला बन जप गया। करेंगे. सर 5 थे सर, नेटवर्क नेट खत्म हो गया. ठीक है, बाद में करेंगे यार. पूरा नेट क्लास खत्म हो का गया। होने दो. पागल की तरह करने लगते हो एकदम. है पागल की तरह करने लगते हो एकदम. है पूरा क्लास का होने दो. मैं टाइम देता हूँ लास्ट में 2 मिनट. पूरा क्लास का होने दो. मैं 112, 113, 113 आयुषी चौधरी, 114 प्रियंका कुमारी, प्रेजेंट है सर 114 115 काजल कुमारी, 11 ठीक है, काजल एब्सेंट है. हाँ, और Yes, कौन sir. और कौन छूट रहा है? बताओ जल्दी 114 जल्दी बोलो. present है, कौन छूट रहा है? 110 sir. 110.
110 लगा हुआ है, छूट रहा है अंकित कुमार मिश्रा जी, लगा हुआ है, छूट रहा है अंकित कुमार मिश्रा जी। ओके सर। मतलब 104 हो गया। कितना? 104 श्रुति वर्मा, प्रेजेंट हो तो कितनी बार प्रेजेंट होना चाहती हो? सर 114 सर। प्रियंका कुमारी। हाँ हो गया प्रेजेंट। और बोलो कौन, और कौन छूट रहा है? 98 हो गया। कितना? 98 हो गया। 14 roll 14 सर 26। roll 14 98 सर 98 14 ऋषु कुमार। सर 81। हो गया सर। 81 कर दिया। 26। सर 98 हो गया। हाँ भाई, तू तो 98 वाले पीछे पड़ गया एकदम आदमी के। 26 हो गया। और 20 अमन कुमार हो गया। आगे ठीक है, कोई छूटेगा तो कल बता देना देख कर, हैं? ठीक है फिर बंद करें। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। ओके, गुड डे।